Hello students, a very good evening to all of you. Again we are going to start with class 11 topic named as friction. Fine. Last topic में मैंने आपको बताया था कि friction होता क्या है. Fine. I simply told you what do you mean by friction, how the friction is acting over the body, and number 3 what are the types of friction. Right. तो बच्चे जब मैंने आपको ये बोला था कि friction होता क्या है, you know कि whenever one body is lying over the surface of another body, तो in a direction opposite there is a force which is developing and that force is basically known as force of friction, right? अब ये friction cause क्यों हुआ, why this friction is happening? अब बच्चे फ्रिक्शन इसलिए आया क्योंकि सरफेस रफ होते हैं और जब एक रफ सरफेस के ऊपर आप दूसरे रफ सरफेस को रखते हैं देयर इज अ क्रिएशन ऑफ बॉन्ड. उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होती है या जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स को नाम दिया जाता है फ्रिक्शन, राइट? And third thing which I told you, that is the types of the friction. कि friction how many types it is divided? Friction is basically divided into 3 types. 3 तरह का friction हमारे पास होता है. Number 1, when one body is at rest over the surface of another, तो जो friction produce होगा उस friction को बोला जाएगा static friction, where force of friction is exactly equal to applied force. Right? Second, the limiting force of friction, maximum value of the static friction. उसके बाद आपकी बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देती है. एंड नंबर 3, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो काइनेटिक फ्रिक्शन में मैंने आपको बताया था कि वन बॉडी इज आइदर रोलिंग, मूविंग और स्लाइडिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, राइट? तो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर कट आइडिया व्हाट वी मीन बाय फ्रिक्शन, राइट? Number 2, what we mean by or what is the cause of friction, and number 3, the types of friction. I hope you people understood this. Okay, fine. So if you have clear cut idea about all these 3 terms, then today we are looking for variation of force of friction with applied force. Fine, this topic we are going to talk about variation of force of friction F with applied force. एंड यू रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने अप्लाइड फोर्स को रिप्रेजेंट करा था कैपिटल एफ से, राइट? तो बच्चे यहाँ पे ये जो स्मॉल एफ है दिस इज माय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड कैपिटल एफ इज द अप्लाइड फोर्स. जब आप वेरिएशन की बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? आप मेरे को ये बताओ कि वेरिएशन से आप समझते क्या हैं? बेटा वेरिएशन का मतलब है हम इन दोनों टर्म्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और वो ग्राफ आपको कैसे रिलेट करेगा कि वेयर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट? सो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन force of friction and the applied force, right? So let us suppose my this x-axis is going to represent the applied force and my y direction is going to represent the force of friction. समझ गए? इतना पता चल गया आपको कि मैं इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करूंगा और यही ग्राफ आपको ये बताएगा कि फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं. I am going to plot one more diagram for you people. ये वाली डायग्राम मैं प्लॉट करूंगा यहाँ पे. This is surface 1 और इस वन सरफेस के ऊपर आपने रखी हुई है another body, right? तो means if my applied force is in this direction, तो बच्चे आपको पता है force of friction is always acting in a direction opposite, right? If small m is the mass of the body, weight is hanging vertically downward, so weight is equal to mg and this side is going to represent the normal reaction. Okay, fine, good. तो when the body is in state of rest, अब मैंने आपको बोला था कि friction is basically divided into 3 types. One is known as static friction, another one is limiting force of friction, and third one is known as काइनेटिक फ्रिक्शन. तो बच्चे जब मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करी, टाइप ए की बात करी, इसका मतलब आपकी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है और बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में कब होगी? इफ आर इज बैलेंस्ड बाय mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर आएगी बिकॉज बॉडी इज नॉट मूविंग लाइक दैट. एंड सेकेंड थिंग, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, राइट? तो अगर यही चीज मैं ग्राफ में आपको रिप्रेजेंट करने की बात बोलूं और आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट यू, इट मींस जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा.
तो इट मीन्स अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जब ऐसा सिनेरियो होता है, यू पीपल नो फ्रॉम योर थर्ड यूनिट और फ्रॉम योर सेकंड यूनिट काइनेमेटिक्स कि देयर शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी टिल दिस पोजीशन। फाइन, इट मीन्स जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे सरफेस भी आपको फ्रिक्शन ऑफर करेगा, बट दीज टू दे बैलेंस। अब बेटा ये बैलेंस कब तक करेंगे एक दूसरे को? देखो सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी सरफेस का एक मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। देखो मैंने इस ग्राफ में क्या करा, अप्लाइड फोर्स आई इंक्रीजेस, सिमिलरली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां से यहां पे पहुंच गया, राइट, एंड सिमिलरली दिस इज माय अप्लाइड फोर्स। तो मान लो अब हम कुछ ऐसी स्टेज पे जाने वाले हैं या चले गए हैं जहां पे फ्रिक्शन मैक्सिमम को टच करने वाला है, राइट। यू रिमेंबर सेकेंड टर्म जिसको मैंने बोला था लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वाली स्टेट जहां अप्लाइड फोर्स बैलेंस करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, बेटा यहां आपकी बॉडी रेस्ट में रहेगी, राइट, एंड फ्रिक्शन ऑफर्ड हियर इज नोन एज एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, अब मान लो आपके सरफेस ने फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू थी, this is the maximum value of the friction that is given by the body, that is given by the surface। समझ गए? तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन आ गई तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ एस मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इट मींस अब आपकी बॉडी उस स्टेज पे आ गई जिसके बाद अगर मैंने थोड़ा सा भी अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये कौन सा फ्रिक्शन हुआ? दिस इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मींस फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपके सरफेस ने मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर दिया, राइट। अब इसके बाद फ्रिक्शन को कम ही होना पड़ेगा। व्हाई? वी हैव द थर्ड टाइप काइनेटिक फ्रिक्शन वेयर बॉडी इज रनिंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो इट मींस इन द थर्ड केस whenever we are having this friction that is always less, और उसके बाद बेटा आपकी बॉडी किस में आएगी, योर बॉडी इज इन मोशन। इट मींस ये वाला जो फ्रिक्शन है इस फ्रिक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे, दैट फ्रिक्शन इज बेसिकली नोन एज kinetic friction। Fine, so here I am talking about static friction, this is I am calling limiting force of friction। See, this is the maximum friction and after that friction decreases, that is the kinetic friction। So there are three stages। Stage number 1, body is in rest, body is at the last stage of rest, limiting force of friction, and now one body is moving over the surface of another body, so that is known as motion, kinetic friction। So this is how we can explain what happened while we are taking care of variation of force of friction with the applied force। I hope this is clear to everyone। ये आपकी डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल हैं, चलो है ना। माना आपको कीचड़ में चलने को बोल दिया जाए, क्या होगा? जैसे ही कीचड़ में पांव रखोगे, स्लिप्ड एंड फॉलन डाउन, राइट। क्यों फॉलन डाउन? भाई सरफेस ने आपको फ्रिक्शन ऑफर नहीं करा। अगर फ्रिक्शन ऑफर करता तो आपको चलने में थोड़ी दिक्कत आती, बट दैट इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। या आप ऐसे करो, इन योर हाउसेज मार्बल इज देयर, ऑयल फेंक के देखना मॉर्निंग में व्हाट हैपेंड, यू स्लिप्ड एंड फॉलन लाइक एनीथिंग, राइट। तो फ्रिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें चलने के लिए, गाड़ियों को रोकने के लिए, ब्रेक्स लगाने के लिए फ्रिक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे मत सोचो कि फ्रिक्शन नहीं चाहिए, फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड। बट सी वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया और उस एग्जांपल से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और उसके बाद तो बॉडी दैट इज मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। सो दिस नॉलेज प्रीवियसली वी पीपल हैव, और इसी नॉलेज को हमने इंप्लीमेंट करा व्हाइल वी आर ड्राइंग अ ग्राफ वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद द अप्लाइड फोर्स। I hope you people understood this lecture. Fine. In my next lecture, I will let you know the laws of friction and what we have, coefficient of static friction and coefficient of kinetic friction. Thank you very much.